myself Pooja Jadhav, and I'm going to host today's webinar. We have our guest and our expert, Ms. Divya Sanglikar, who is a sports nutritionist. And as we all know, that today's topic is how to improve energy level with right diet. Definitely, the lockdown period has increased by more 20 days. And now this is definitely trying our patience, yours and mine as well. So everyone is more confused about what type of diet is there. If people are talking about exercise, meditation. So we have our expert here to tell us about what type of exact, if we say diet, what is the right diet to take in this quarantine period. Okay, so before we move towards our webinar, I would just like to guide you on, or just like to introduce you. Many of them are our regular viewers, so everyone is aware of what Just for Hearts is. But for the new viewers and our Facebook friends also, I would just like to brief it about what exactly Just for Heart is. So Just for Hearts is a wellness partner. We are working in corporate wellness since more than 10 to 12 years now, and we are associated with, like, we many experts are there with are associated with Just for Hearts for all wellness activities which we do. We carry out sessions, checkups are there, and various health activities. Presently, with this, in this quarantine period, we focus on like small checkups and all are not possible as we are into this lockdown or in quarantine period. So telephonic consultations with experts like diet experts, doctors are there, psychologists are there. So we are arranging webinars as well as telephonic consultation for people who need help, who need expert help, I would say. So yes, these are few webinar guidelines as we move forward. Please, I request you to keep your audio on mute. Write your questions in chat window, the QA window, sorry. Use a Bluetooth or a good quality speaker so that you can hear the expert advice very well. Message if you want to get in touch with our tech team for any small query, or if you're facing anything that you're not able to connect with us for the present webinar, you can just call us on the number which is displayed on the screen. And for any queries, as we always say, that we are available 24/7, and you can get in touch with us on this mail ID. You can drop your queries and we will be reverting you within 24 hours. So we'll go ahead for today's topic. Yes. So about Divya Sanglikar, I'll just introduce our expert, Divya Sanglikar. So she is a sports nutritionist, and she is with Just for Hearts. She's COO of Just for Hearts, and with Just for Hearts since like the beginning stage. So definitely she has been asset to Just for Hearts growth, and definitely a very good expert. So let's move towards our topic. For today's topic, we all know the topic exactly, the what type of diet we should go on. So I request Divya ma'am to take forward the session. Sure, Pooja. Thank you so much for wonderful opening for this webinar, and good evening to everyone. और आज का जो सेशन है वो हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में करेंगे, दोनों लैंग्वेजेस में करेंगे. तो पहले मुझे थोड़ा सा इस बात पे आपको टच बेस करना है कि ये टॉपिक क्यों लिया, कि हाउ टू इम्प्रूव योर एनर्जी लेवल्स विद राइट डाइट. ये केवल अभी की कोविड की सिचुएशन या फिर जब हम होम बाउंड है उस सिचुएशन के लिए नहीं है. तो आज जो चीजें आप इसमें सीखोगे उसको आप बाद में भी, मतलब जब हमारा रेगुलर लाइफ शुरू हो जाए उसमें भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज एनर्जी लेवल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल अच्छी होना बहुत जरूरी होता है. So what do we mean by feeling energized? है ना? तो feeling energized means so many things. कि जैसे मुझे काम करने की इच्छा है, मुझमें उत्साह है, और मैं ऐसे लेथार्जिक ऐसे होके बस डल होके बैठी नहीं हूँ. तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं.
तो इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, मुझे थोड़ा सा आप लोगों के बारे में जानना है। और पूजा, हम पहला पोल रन करेंगे जहाँ पे Yes. आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कि अभी इस हम जब यहाँ पे बैठे हैं इस सेशन के लिए, आपको खुद कितना एनर्जाइज लग रहा है आज। Okay, Divya, we have the poll on our screens. yes. So we can see कि how energized you are feeling right now. आपको बहुत थकान महसूस हो रही है या आपको ठीक है, मतलब ओके ओके लग रहा है, आपकी लेवल एनर्जी लेवल अच्छी है, या फिर आपको बहुत हाई एनर्जी लग रहा है, आपको लग रहा है बाहर जाके मैं रनिंग करके आ जाऊँ। आपको कैसे लग रहा है? आप प्लीज इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। Yes, just 2-3 seconds more and we will stop the poll. राइट। Okay, so we have our results. I'll be sharing the results. Okay, great. So 73% people are feeling good energy levels. कोई भी ऐसा नहीं है हमारे पास जिनको हाई एनर्जी, जिनको मैं अगर बोलूँ अभी कि उठ के आपको 100 स्किप्स करने हैं या फिर यहीं के ये एक्टिविटी करनी है, तो ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, तो देखिए, एनर्जी लेवल हमारी हाई होना बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, हम अभी वो बात भी करेंगे। बट सबसे ज्यादा कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी लाइफ में कि जो हमारी एनर्जी लेवल अच्छी होने से सही हो सकती है ना। जैसे अभी हम सब लोग होम बाउंड है, और होता क्या है, दिन भर जो लेडीज है या फिर सबको ही वर्क का एक स्ट्रेस जो है हर किसी के ऊपर है ना। तो घर में बच्चे होते हैं या एक दूसरे के साथ जो हमारा बिहेवियर है उसमें भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ जाती है। हम अगर थके हुए हैं और हमारे पास कोई आके सवाल पूछ रहा है, कोई हमसे बात करना चाहता है, तो हम किस तरीके से उनको आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी लेवल्स हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। अगर रिलेशन आपके अफेक्ट हो रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी घर पे हो सकती है, काम हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। अगर आपको एनर्जाइज नहीं लग रहा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी हमारा हो जाएगा। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। फ्रेश होता है तो वो आप लग सकते हो, उसको आप तैयारी कर सकते हो, कुछ चीजें हमारी ठीक है। तो अगर अच्छी है आप आपकी गोल्स फुलफिल कर सकते हो। Sorry to interrupt you, Divya. हाँ पूजा, We can't hear you clearly. Can you just please take your slide, like, you can just talk on this slide from the beginning because the audio was not clear. ओके, इज इट बेटर नाउ? Yes, very much. Thank you. Okay, great. So I was saying कि why do we need to have good energy levels? Because energy levels अच्छे से कई सारी चीजें हमारी लाइफ में अफेक्ट होती है ना, जैसे हमारे रिलेशनशिप, हमारी ओवरऑल काम की प्रोडक्टिविटी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम जो लाइफ में करना चाह रहे हैं, तो गोल्स होते हैं या फिर डेली हमारे टास्क होते हैं, उसके बाद भी आप खुद को कैसे लग रहा है वो बहुत डिपेंड करता है। तो अगर एनर्जी लेवल हमारे अच्छे हैं तो हम एकदम अच्छे से कर सकते हैं। इसमें ऑडियो ना पूजा A bit, it is bit, it's breaking, it's cracking in between. Okay, just give me a minute. Now we can hear you clearly, but I guess when you're trying to talk continuously, there's a bit of disturbance. All right. Okay. So now we will see कि which all things are there which reduce your energy. कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी एनर्जी कम हो जाती है या फिर आप एनर्जी लूज करते हो। सबसे पहली बात आपको पता होगा कि स्लीप, ठीक है, अगर आपको पूरी नींद नहीं मिल रही है तो आपकी एनर्जी लेवल्स अफेक्ट होंगी। तो हमें देखना है कि
हर दिन या हर रात आपकी 7 से 8 घंटे, rather 6 से 8 घंटे नींद पूरी हो रही है। दूसरी चीज जहां पे आपको थकान लग सकती है वो है डिहाइड्रेशन। अब समर सीजन आ रहा है तो पानी का जो इनटेक है वो हमें बढ़ाना है, ठीक है। और अगर वाटर इनटेक हमारा सही नहीं होगा तो एनर्जी लेवल्स कम हो जाती है। कई बार हमने ऐसे देखा है कि दोपहर के टाइम पे या फिर 12 बजे के बाद जब धूप का एकदम बहुत ज्यादा असर होता है, उस टाइम पे हमको नींद आने लगती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। अगर आपको बहुत पसीना आ रहा है और वो पानी रिस्टोर नहीं हो रहा है तो डिहाइड्रेशन और लो एनर्जी आपको महसूस हो सकती है। एक और बहुत बड़ा रीजन है जो आपकी एनर्जी लेवल्स को कम करता है, वो है जंक फूड। आपके डेली लाइफ में कितनी शुगर आप खा रहे हो, कितने बेकरी प्रोडक्ट्स आप खा रहे हो, कितना फ्राइड खाना खा रहे हो, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी लेवल को अफेक्ट करेंगी। तो सबसे पहली बात, कई बार मैं मेरी प्रैक्टिस में ऐसे लोग देखती हूँ जो हेल्दी खाना तो खा रहे हैं, वो कहते हैं कि दिन में मैं केवल मतलब सुबह ब्रेकफास्ट लेती हूँ, लंच लेती हूँ और डिनर लेती हूँ और बीच में एक आध फ्रूट लेती हूँ, बट फिर भी मुझे शाम तक बहुत मेरी एनर्जी लो हो जाती है। ऑफिस से जब आते हैं वापस तो मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। उसका सबसे पहला रीजन क्या है कि न्यूट्रिशनल गैप होती है। अब ये न्यूट्रिशनल गैप क्या है कि मान लो हमें 100% कोई न्यूट्रिएंट चाहिए, बट हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से हमें केवल 70% या 60% मिल रहा है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो मैं बात कर रही हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स की नहीं। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये जो चीजें होती हैं ये हमारा मेटाबॉलिज्म सही करने में हेल्प करती है। तो हमें ये देखना है कि हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनके ऊपर जब ध्यान देते हैं, इसके साथ साथ हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के इंटेक के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जहां पे हम अपनी न्यूट्रिशनल गैप फिल कर सके। क्योंकि इन चीजों से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, विटामिन मिलते हैं जो हमें एनर्जाइज फील करने में हेल्प करेगा। अब कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस भी है जहाँ पे एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, जैसे थायराइड हो गया। जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनको लो एनर्जी लेवल्स हमेशा महसूस होते हैं। तो उनका सबसे पहले काम रहेगा कि अपने मेडिसिन लेके अपना जो थायराइड है उसको सही करो। उसके बाद अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी लेवल्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। अब एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, एक्सेस वर्कआउट या फिर एथलीट्स। तो कई बार हम लोग बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, पर्टिकुलरली वेट लॉस करने के लिए या फिर कुछ हेल्थ गोल दिमाग में रख के। तो उस केस में भी आपकी बॉडी को ज्यादा परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे कुछ एथलीट होते हैं या कुछ लोग हैं जो जिम में जाते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो जितना आप अपनी बॉडी को काम करवा रहे हो उतना ही उसमें न्यूट्रिएंट रेप्लेनिश हो जाने चाहिए, ठीक है। सो ये ध्यान हमें देना है, अगर हम कोई स्पेशल चीज कर रहे हैं तो उसमें हम अपनी खान पान का और अपनी एनर्जी लेवल्स को सही रखने के लिए इन चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं अपनी एनर्जी लेवल सही करने के लिए? तो ये नींद के बारे में तो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेक श्योर आपको 6 से 8 घंटा साउंड स्लीप मिले हर दिन, आई मीन हर रात को। उसके बाद जो है डाइट है हमारा। डाइट में आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है जो कि हम हमेशा करते हैं। जैसे हेल्दी डाइट हम सबको पता है कि हमें दिन में 2 से 3 फ्रूट्स खाने हैं, मील स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है? हमें हरी सब्जियां खानी है, सैलेड्स खाने हैं। बट ये सारा हमें हर एक मील में अप्लाई करना है। मतलब क्या कि ये जो अभी मैंने बीच में सर्कल दिखाया है, तो एक मान लो प्लेट है आपकी, ठीक है, खाने की। ये ब्रेकफास्ट की हो सकती है, लंच की हो सकती है या फिर डिनर की हो सकती है। तो जब आप कोई भी मील ले
रहे हो, ये 3 मील्स ले रहे हो, उसमें से हमें ज्यादा पोर्शन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का लेना है। मान लो 3/4 पोर्शन हमें फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल उस मील में इंक्लूड करने हैं, 3/4 पोर्शन हमें कार्बोहाइड्रेट करने हैं, और बचा हुआ जो है वो प्रोटीन आएगा। इससे हम हर एक टाइम पे, मतलब दिन में 3 बार सही तरीके से विटामिन मिनरल्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं वो लेंगे, और बाकी के न्यूट्रिएंट्स तो आ ही रहे हैं। ठीक है। पानी कितना पीना है? पानी हमें दिन भर में एटलीस्ट 2 से 3 लीटर मिनिमम पीना है। आपके यहाँ पे जिस तरीके का मौसम है, क्लाइमेट है, अब गर्मी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आप वाटर इंटेक बढ़ा सकते हो। ठीक है। मतलब पानी इसलिए कि कभी भी आपको ऐसे लगे कि मुझे एनर्जी लग रही है, नींद आ रही है, मुझे नहीं लग रहा है, आप एक गिलास पानी के देखो, और उसके साथ साथ 2 ड्रम डीप ब्रीथिंग। अगर आपने हमारा 2 दिन पहले कल का थोड़ा सा सेशन अटेंड किया होगा, तो हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी है उसमें, जहाँ पे हमने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखी या प्राणायाम सीखा है। तो यस, ऑक्सीजन इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई टेक्निकली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, बट अपनी ब्रीदिंग पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर पानी अगर पीते हैं तो पानी के हिसाब से भी बॉडी में अंदर ऑक्सीजन जाता है, तो वो हमारे ऑर्गन्स को हाइड्रेट होने में हेल्प करता है। और तीसरा, ऐसी चीजें खानी है जो हमें एनर्जी लेवल अप रखने के लिए हेल्प करे, जैसे 3 to 4 मील्स एवरी डे। ठीक है। अब ये जो 3 to 4 मील्स है, इसमें हमें ध्यान देना है कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट जो है वो आपका पावर हाउस है एनर्जी का। ठीक है। ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं हम? रात के डिनर से अगले दिन जो फास्ट होता है उसको ब्रेक कर देता है ना। नहीं तो लंच तक आपका कितना 14 घंटे से भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास ब्रेकफास्ट होता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि डाइटिशियंस कहते हैं कि स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स। मतलब क्या कि एक ही टाइम पे बहुत सारा खाना मत खाइए, आप उसको डिवाइड कर लीजिए। तो ये स्मॉल मील्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 3 मेन मील होने चाहिए दिन भर में, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, फिर उसके बाद लंच ले रहे हो और डिनर ले रहे हो। अब इसके बीच में आप 2 छोटे मील्स ले सकते हो, जिसमें आप फ्रूट्स खा सकते हो, जिसमें आप नट्स खा सकते हो, जिसमें आप ऑयल सीड्स खा सकते हो, जिससे आपको विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं। फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट, मैं ये कहूंगी कि सीजनल फ्रूट इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको डायबिटीज है तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि क्या फ्रूट्स आप ले सकते हो, अदरवाइज बाकी सब लोग सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद पानी कितना पीना है हमें? तो पानी हमें सुबह उठने के बाद 1 गिलास पीना है। उसके बाद दिन भर में मॉनिटर करना है कि मैं 2 से 3 लीटर पानी पी रही हूँ या नहीं पी रही हूँ। अगर नहीं पी रहे हो और आपको लगता है कि मेरी एनर्जी लेवल्स कम है या मुझे इस टाइम पे थकान महसूस होती है, तो आप उस टाइम पे पानी का इनटेक थोड़ा सा मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। अब स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स लिखे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन डी। ये जो है, ये जो मिनरल्स है, ये हमें बहुत इजीली मिल जाते हैं हमारे खाने से, है ना। जहाँ पे हम अगर नींबू पानी इंक्लूड कर दें जिसमें सॉल्ट डाला हुआ है, तो हमें सोडियम मिल जाता है, पोटेशियम हमें मिल जाता है। कुछ ऐसे पोटेशियम रिच फूड्स है, मतलब आलू हो गया, फिर बनाना हो गया, केला हो गया, इन चीजों से पोटेशियम मिलता है। जो नारियल पानी है, नारियल पानी से भी हमें बहुत सारा पोटेशियम मिलता है। तो ये मिनरल्स जो है, ये अगर आपको पर्सपिरेशन मतलब बहुत ज्यादा स्वेट आता है तो उसमें ये मिनरल्स का लॉस होता है, उसके बाद भी थकान लग सकती है। तो हमें ये देखना है कि ये मिनरल्स की हम रिप्लेनिश कर रहे हैं। कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। साल में एटलीस्ट एक बार अपने अपना विटामिन डी चेक करना चाहिए। अगर लो लेवल्स है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपने लेने चाहिए। प्लस डाइट में ऐसी कुछ चीजें ऐड करनी है जिससे हमारे विटामिन डी के लेवल्स सही हो जाए। ठीक है। हमें कहाँ से मिलेंगे विटामिन डी? ज्यादातर नॉनवेज फूड सोर्स से, या फिर ऑयल सीड्स जैसे पंपकिन सीड हो गया,
सनफ्लावर सीड हो गया या फिर एग योक हो गया, इन चीजों से हमें विटामिन डी मिलता है। बट केवल इतना, अगर आपको डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको थकान लग सकती है। आयरन की अगर डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, तो उस वजह से भी थकान आपको लग सकती है। ठीक है, तो पहले तो हमें डेफिशिएंसी के लिए देखना है और फिर जो मिनरल रिच फूड्स है उनको इंक्लूड करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या फिर अवॉइड ईटिंग टू मच स्वीट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें जरूर ध्यान में रखना है। दिन भर में आप खुद सोचो, हम कितने स्पून शुगर लेते हैं या फिर कितनी चाय या कॉफी लेते हैं, तो ये अभी हम थोड़ा सा जानेंगे। पूजा, हमें पोल चाहिए सेकंड वाला। यस दिव्या। यस, आप अभी देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। यस, तो आप लोग लिखिए कि डेली लाइफ में आप अप्रोक्सीमेटली कितनी चीनी लेते हैं। अब एक्चुअली इसके बारे में मैं बात करूंगी, बट ये चीनी आप जो चाय में, कॉफी में, दूध में या फिर अगर कोई शरबत ले रहे हो उसमें जो ऐड करते हो वो भी काउंट हो जाती है। Yes. Now we have the results with us. Okay. Just sharing the results. Okay, 2 to 3 spoons, and they are saying 50% and 3 to 5 spoon 18% people. Okay. Yes. ठीक है, थैंक यू पूजा। तो अब इसका थोड़ा सा सीक्रेट आप जान लीजिए कि चीनी, कई बार हम लोगों को ऐसे होता है कि बहुत थकान हो रही है, एक कप कॉफी पी लूं, है ना। कुछ लोगों को होता है एक कप चाय पी लूं। कॉफी, चाय, इसमें होता है टैनिन या फिर कैफीन, जो चीजें हमें उस वक्त के लिए एक थोड़ा सा पंप अप करती है, हमारी एनर्जी जो है उसको बूस्ट कर देती है। ये जो इफेक्ट होता है ये टेम्पररी होता है। ठीक है, मतलब हमने चाय पी ली या फिर कॉफी पी ली और हमें अच्छा लगा, फ्रेश लगा, क्योंकि टैनिन या कैफीन का इफेक्ट वैसे होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भूख लगने पे या फिर जिनको कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है स्पेसिफिकली खाने के बाद, या फिर जब थकान हो जाती है तो हम सारे एरेटेड बेवरेजेस पीते हैं। कुछ लोग एथलीट होंगे या स्पोर्ट्स में होंगे तो वो गेटोरेड और ये जो सारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये लेते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है, इनका न्यूट्रिशनल लेवल आपको चेक करना है और देखना है कि इनमें कितनी चीनी ऐड की हुई है। ठीक है, मेजरली ये सारी चीजें आपको जो एनर्जी देते हैं वो मिलती है शुगर की वजह से। ठीक है, अगर कभी भी आपको थकान हो रही है, आपने मीठा खा लिया, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी शुगर एकदम से, मतलब आपके ब्लड में शुगर एकदम से बढ़ जाती है, तो आपको एनर्जाइज लगता है, तो उससे एनर्जी मिलती है। बट लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट पॉजिटिव नहीं होता है। ये एक रीजन हो सकता है आने वाले समय में हमें डायबिटीज या फिर और कुछ डिजीजेस होने का। तो हमें हमारी आदत चेंज करनी है और एनर्जी लेवल्स अगर अच्छे रखने हैं तो शुगर का इंटेक कम कर देना है। कितना कम करना है? 2 स्पून से भी कम। अब ये जो शुगर आती है हमारे डेली लाइफ में, वो कहाँ कहाँ से आती है? तो शुगर जो है हम ऐड करते हैं चाय में सुबह उठने के बाद। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि चाय में कितनी चीनी मैं ऐड करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट कुछ बनाती हूँ उस टाइम पे कॉफी में, अगर कॉफी लेती हूँ या दूध लेती हूँ तो उसमें कितनी चीनी होती है, फिर दिन भर में कोई मीठी चीज में खाती हूँ क्या, फिर और जो हम नमकीन वगैरह खाते हैं उसमें भी हिडन शुगर होती है। बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे शुगर होती है। तो ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स है इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या फिर मैदा भी होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। तो ये शुगर एक टेम्पररी एनर्जी देने का काम करता है, बट लॉन्ग टर्म में ये हमें हेल्प नहीं करेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि मुझे शुगर क्रेविंग रहती है और थोड़ा सा चीनी या फिर चॉकलेट खाने के बाद अच्छा लगता है, मतलब क्या,
क्रेविंग मतलब क्या कि मेरी एनर्जी लेवल्स कम थी और वो खाने के बाद मुझे फील गुड होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे। तो उसका एक रीजन ये है कि हमें कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी है। अब ये इतनी कमी नहीं है कि हमें डेफिशिएंसी हो जाए उसकी या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाए, बट शुगर क्रेविंग अगर आपको हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा अपने जो ओवरऑल सारे विटामिन और मिनरल्स इनके इंटेक पे ध्यान देना है और पर्पसफुली जो हमारा शुगर का इंटेक है उसको कम रखना है। तो शुगर कंजम्पशन जो बढ़ता है हमारा, उसको मतलब अब ये विशियस साइकिल बन जाता है कि हम चीनी खाते हैं, उससे हमें टेम्पररी एनर्जी मिल जाती है, बट वापस थोड़ी देर बाद वो चीनी खाने का मन करता है, फिर वापस उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, आपका वेट हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि शुगर का जो कंजम्पशन है उसको कम कर दो और अपने डाइट पे फोकस करो। डाइट पे फोकस हमें क्या क्या करना है, तो जो 3 मेन मील्स है हमारे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसमें उस प्लेट को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये एकदम सिंपल तरीका है। मतलब आप अगर किसी डाइटिशियन से बात करने के लिए जाओगे, आप कंसल्ट करोगे उनसे, तो वो खुद आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से शायद ऊपर नीचे आपको बता दे, बट ये मैं अभी एक सिंपल टिप आपको बता रही हूँ जहाँ पे आप अपनी प्लेट को 3 पोर्शंस में डिवाइड करोगे, जिसमें 1/3 3/4 होगा, 1/3 होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या कि जैसे पोहा, उपमा या फिर रोटी, राइस, ये सारी चीजों से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। उसके बाद जो दूसरा एक तीसरा पोर्शन होगा वो होगा आपका प्रोटीन, जिसमें एग्स आ सकते हैं, मिल्क आ सकता है, पनीर है, दही है, ठीक है। और बचा हुआ जो पोर्शन है वो है फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्लान कर सकते हो। होता क्या है इंडियन डाइट में, हमारे खाने में सबसे पहले हम लेते हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हम लेते हैं राइस या रोटी। उससे कम क्वांटिटी में हम लेते हैं मान लो सब्जी और दाल दोनों मिला के, और इतनी सी क्वांटिटी में होता है सैलेड, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये एकदम उल्टा हो, सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमारी दाल और सब्जी की होगी, सैलेड की होगी, उसके बाद रोटी की होगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम कैसे सही करें, ये असेसमेंट उन लोगों के लिए है जिनको ऐसे लगता है कि मेरी एनर्जी लेवल्स कम होती है या फिर कभी आपको लगता है कि थकान सी हो जाती है। तो आपने एक डायरी मेंटेन करनी है 1 हफ्ते के लिए, या फिर 3 दिन भी कर सकते हो आप, 3 दिन भी काफी है। और उसमें पूरे दिन में आप क्या खा रहे हो उसको लिख के रखना है। उसके साथ साथ वो खाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है वो भी आपने लिखना है, ठीक है। जैसे आज मैंने ब्रेकफास्ट में ओट्स का पॉरिज खाया तो मुझे कैसे लग रहा है, लाइट लग रहा है। कल मैंने पराठा खाया तो मुझे हेवी लग रहा है मेरी। तो ऐसे आप जब खुद लिखोगे 3 दिनों तक, आपको पता चलेगा क्या खाने के बाद मुझे कैसे लग रहा है, और आप एक सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ ये चीजें खाने के बाद मुझे लाइट लगता है, मुझे एनर्जाइज लगता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने बताया था कि हमारे मील्स स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट होने चाहिए। अगर हमने स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स नहीं किए, हमने एक ही टाइम पे बहुत सारा खाना खाया, तो भी आपका डाइजेशन जो है वो मतलब पेट एकदम हेवी हो जाएगा और आपको सुस्ती लगेगी, मतलब जो काम करने की जो स्फूर्ति है, जो एनर्जी है, वो नहीं आएगी। तो हमें ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये खुद की डायरी मेंटेन करके आप खुद का असेसमेंट कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो आपको कॉम्बिनेशन मिले, फिर आप जाके एक्सपर्ट से बात कर सकते हो कि मैं मेरी एनर्जी लेवल्स कैसे बढ़ाऊं। अब ये एनर्जी लेवल्स आपको कई सारी चीजों के लिए बढ़ानी होंगी। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको एनर्जी लेवल्स अपनी बढ़ानी पड़ेंगी। अगर आपको थायराइड है और आपको लो एनर्जी लेवल्स लगती है तो भी आपको हो सकता है लगे। अगर आपको डायबिटीज है तो उस केस में भी आपको अपनी एनर्जी लेवल सही रखनी है। यहाँ पे हमें थोड़ी ज्यादातर केयर लेनी है कि कभी भी हम लो एनर्जी ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा असेसमेंट होता है जहाँ पे हम खुद की सहायता अपने आप कर सकते हैं, ठीक है।
इसके सिवाय अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली बात कर सकते हो एक्सपर्ट से, और उनकी सहायता ले सकते हो। मतलब कोई भी मेजर चेंज हमें खुद ने नहीं करना है, ठीक है। सो विद दिस मेरी टिप्स और मेरा जो मुझे शेयर करना था आप लोगों से वो क्या है। पूजा, Okay. आई थिंक वी कैन टेक क्वेश्चंस इफ यू Yes, हैव। yes. Thank you, Divya ma'am. It was a lovely session. The reason why we made this session crisp was that we could answer more and more questions, and ma'am is here, so we can have many questions to ask. If anyone wants to ask live questions, they can just raise their hand so that I can make unmute them and they can ask live questions. Till the time we have live questions, I have 2-3 questions. Does breakfast like a king help? Well, yes, you can say like that, but again, we need to focus on small and frequent meals. तो breakfast मतलब एकदम ऐसे ना हो जाए कि आप एकदम सुस्ती आ जाए और फिर काम ही ना कर पाओ, because breakfast करने के बाद we are heading towards our work, so you need to have a balance. आप breakfast को कर सकते हो main meal, उसके बाद थोड़ा कम आप में खाओ, और dinner जो है उसको एकदम light रख दो। Okay, thank you, ma'am. I hope जिस किसी ने ये क्वेश्चन पूछा होगा उनको आंसर मिल गया है, तो डेफिनेटली इट वाज अ हेल्पफुल आंसर फॉर एवरीवन. Next question we have, please brief on nutrition for archery for kids between 6 to 16 years, types of proteins, carbohydrates and other core nutrients which they could have. Divya ma'am, you are mute. You are on mute. Just a minute. Yes. Okay, I think I'm audible. Should I repeat the question again? No, I got it. It was about archery. Yes, yes. Okay. So for archery, see, for any sport, we need to see कि 6 to 16 is a very wide range. First of all, we need to know what is child's exact age, his height and weight. Okay. And then we can tell you exactly ki how should be his overall routine. Now, you also asked me about protein. Yes, if you are vegetarian, you need to include more of protein, which comes from dal, which comes from protein, paneer. Okay, then you can also include curd, milk in his overall diet. Okay, पनीर, if you can make paneer at home, तो पनीर को बनाने के बाद जो पानी रह जाता है, which has whey. So this whey protein is also very good. So you can use that whey protein to knead atta, or use it in dal or sabzi or other things which you are cooking. Anything else they asked, Pooja? Yes, ma'am. Next question, very relevant, relevant to this period is whenever there is insufficient, insufficient food stock, or we have limited food stock with us in this lockdown. How do we manage 3 to 4 meals per day? Can you repeat? Can you tell me? If there is a very limited food stock available due to this lockdown, and we are not able to get it outside because of the insufficient material, then how to manage the meals for 3 to 4 times a day? Okay, understood. Options they Now, want. Yeah. okay, sure. Now, insufficient stock और availability जो है वो हमें प्रॉब्लम करेगी फ्रेश आइटम्स, जैसे मिल्क हो गया, देन योर पनीर या फिर कर्ड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन चीजों में, ठीक है। सो बेस्ट वे इज कि सबसे पहली बात, जितनी चीजें आप स्टॉक कर सकते हो जो नॉन पेरिशेबल चीजें हैं उनको आप स्टॉक करके रख दो, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड रिफाइंड या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग दिस टाइम, जिसमें बहुत ज्यादा मैदा होता है या फिर चीनी होती है, बिकॉज एज इट इज नॉट न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस फूड जो आप ले सकते हो वो है होल ग्रेन्स, जैसे दलिया हो गया, या फिर आप ओट्स रख सकते हो, आप क्विनोवा रख सकते हो, ठीक है। क्विनोवा एक, या फिर बाजरा हो गया, जवार हो गया,
इनका आटा जो है, इनमें मिनरल्स और विटामिन हमें मिलते हैं अगर हम इसको गेहूं के साथ कंपेयर करें, ठीक है। तो ये बेटर ऑप्शन है और इनको हम घर में स्टॉक कर सकते हैं। अब अगर 3 मील्स आप नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप दिन में अगर 2 मेन मील भी ले रहे हो तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है। हम घर में जितना इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा बहुत हाउस होल्ड काम जितना करेंगे, उतनी हमारी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो उसमें कोई लॉस नहीं होने वाला, मतलब हमारा एनर्जी लॉस नहीं होने वाला। तो 2 मील्स में भी आप कर सकते हो, बट उसमें जो चीजें नॉन पेरिशेबल है उनको आप स्टोर करके रख दो। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिल्कुल ही नहीं मिल रहे हैं तो वो कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगा, 1, 2 या 3 हफ्तों में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब आपको एकदम से डिफिशियंसी नहीं होगी। जैसे मैंने ये सेशन स्टार्ट करने के टाइम पे ही बताया था कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल अभी की सिचुएशन के लिए नहीं, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रही हूँ कि ओवरऑल जब हमारी लाइफ होती है तो उसमें हम एनर्जी कैसे अच्छे से रख सकते हैं, राइट। सो टिल देन ट्राई टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। जितना फ्रेश खाना बना के आप ले सकते हो उतना फ्रेश होम कुक्ड फूड, ठीक है। और उसमें होम कुक फूड में जो कॉम्बिनेशन है हमारे मतलब वेजिटेरियन सोर्सेस से, तो आप सीरियल्स और पल्सेस का कॉम्बिनेशन बनाओ, वो एक दूसरे को कम्बैट करता है, या एक दूसरे का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Thank you, ma'am. Next question I would like to take. Are energy drinks good for health? एनर्जी ड्रिंक या फिर एनी एरिएटेड ड्रिंक, वी रियली नीड टू सी कि कौन सा ड्रिंक आप ले रहे हो और क्यों ले रहे हो। अगर कोई एथलीट है तो उनकी एनर्जी ड्रिंक्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ठीक है। या फिर किसी भी स्पोर्ट्स के बाद आपको लेना है तो उसमें हमें शुगर बेस्ड एनर्जी ड्रिंक नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो बी कॉम्प्लेक्स या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उनसे हमें एनर्जी मिले, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी ड्रिंक सिलेक्ट करने से पहले उसका न्यूट्रिशनल लेबल जो है उसको आप सही तरीके से चेक कर लो एक बार। उसमें आप देखो कि पर सर्विंग आपको कितनी चीनी, कितनी शुगर मिल रही है। अगर उसमें 5 ग्राम से ज्यादा है तो वो हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। प्लस अगर उसमें से हमें पोटेशियम, सोडियम, ये जो मिनरल्स है जो आपकी एनर्जी लॉस को रिप्लेनिश कर सकते हैं, ये अगर मिल रहे हैं तो वो ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए ही तो आप नेचुरल, मतलब आप कोकोनट वाटर पे रिलाई करो। आप उसमें से मतलब ग्लूकॉन डी ले सकते हो, ठीक है। आप नींबू पानी ले सकते हो जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीनी और सॉल्ट ऐड कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर बच्चा रनिंग कर रहा है तो उसका रनिंग में कितना वाटर लॉस होगा, कितना एनर्जी लॉस होगा, उसके हिसाब से उसका वाटर इनटेक कितना होगा रनिंग करने से पहले, बीच में और उसके सेशन के बाद। ये स्पेसिफिक हो जाता है फिर थोड़ा सा कि जो टोटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर या एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। Okay, thank you, ma'am. Next question we have that a specific diet for girls around the age of 12 to 13 years who are into athletics and swimming. So, any tips you would like to give them? Yeah, sure, why not? So swimming, you need to again maintain high protein intake, okay, and you also need to maintain good water intake. You must have heard कि कोचेस बहुत बार बताते हैं कि आप पानी बहुत पियो। स्विमिंग करने से पहले भी नहीं पियोगे तो क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। अगर मसल क्रैम्प है तो आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर हो जाएगा, ठीक है। सो आपको पूरे दिन में मिनिमम आपको 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट तो लेना ही है। बट अगर आपका, अब मुझे पता नहीं आपका हाइट वेट कितना है, पूजा, डू वी हैव देयर डिटेल्स? No. They have just generalized. This is a generalized question from someone. Okay. They have just mentioned the age. हाँ, they said कि 12 to 13, right? So 12 to 13, okay, 12 to 13 years में या फिर किसी भी एज ग्रुप में, यूजुअली 12 प्लस में हम कहते हैं, आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाना शुरू कर सकते हो उनका। So from first you have to start with 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। मतलब
अगर बच्चे का वेट 60 kg है, उस लड़की का वेट 60 kg है, तो स्टार्ट विथ 60 ग्राम प्रोटीन पर डे और उसको 75 ग्राम पर डे तक आप लेके जा सकते हो। ठीक है, अब इसमें उनका गोल क्या है वो भी हमें देखना है। गोल मतलब फैट लॉस करना है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, ब्रीदिंग इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें। एक और चीज हम देखते हैं स्विमर्स में कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपको थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है आपके ब्रीदिंग के हिसाब से। ठीक है, तो आप कब जा रहे हो अपने स्पोर्ट्स के लिए, उसके हिसाब से आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना होगा उस मील में, वो देखना चाहिए। Okay. One more question we have that can we just a minute? Yeah. The question says, how often can we take vitamin D supplementations? Vitamin D supplementation, first of all, you should consult with doctor. But if you have low levels of vitamin D, then you need to take one sachet every week, and this has to be continued for 3 months. But I would say कि please consult with your doctor, उनका prescription लो आप, and then only start this, because vitamin D जो है fat soluble vitamin है, अगर इसका गलती से excess dosage हो जाए तो side effects हो सकते हैं। एक और चीज, अगर विटामिन डी लेवल्स कम है, आपने ये 3 मंथ्स का कोर्स कर दिया, उसके बाद डॉक्टर से आप मेंटेनेंस कोर्स के लिए भी पूछना, बिकॉज बहुत मतलब टाइम ये देखा गया है कि इंडिया में लोगों के विटामिन डी लेवल्स कम है, जबकि हमें बहुत अच्छी धूप निकलती है, अच्छा एक्सपोजर है, सन एक्सपोजर है, बट फिर भी विटामिन डी लेवल्स कम होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एक तो ये 3 महीने का कोर्स करना है जिसमें हर वीक ले रहे हैं, उसके बाद उसको मेंटेन भी करना है, जहाँ पे ज्यादातर डॉक्टर्स मंथ में एक बार एक सेशे लेने के लिए बताते हैं। Okay, thank you, ma'am. Before moving to the next questions, I would like to update that we are getting too many questions related to sports nutrition, basically for the kids and everything. So definitely, Divya ma'am is the right person to answer the queries. So I would request that on the screen we have the contact number displayed, and you can book an appointment with Divya ma'am if you have to have a personalized diet consultation for some for your kids who are into sports and in like quite active, then definitely ma'am will be the right person. Moving to the next question, can you suggest some diabetes foods for snacks? This is the question which is asked. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड आई मीन मैं इस टॉपिक को ऐसे कोरिलेट करूंगी कि जैसे हमने कहा था, अगर किसी को डायबिटीज है तो आपको एनर्जी लेवल्स अपनी सही रखनी है, और अब ये जो स्नैक्स है ये हम जो हमारे मेन मील्स है उसके बीच में लेंगे। ठीक है, तो मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप ले सकते हो, या फिर लंच और डिनर के बीच में। अब इसमें सबसे पहला स्नैक आपने क्या लेना चाहिए, वो है नट्स एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, जैसे हमारे फ्लैक्स सीड्स हो गए, या फिर पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इनको हल्का सा रोस्ट करके रखना है। आप चाहिए तो हल्का सा नमक उस पर डाल के रख सकते हो, और इसको एज अ स्नैक हमें यूज करना है। इसके साथ साथ आप कोई भी फ्रेश फ्रूट ले सकते हो जो फाइबर में रिच है। तो फाइबर में रिच मतलब आपका अमरूद हो गया, सेब हो गया, ऑरेंज हो गया, फिर आप कोई भी जैसे क्या कहते हैं रोस्टेड स्नैक्स जो होते हैं वो भी आप रख सकते हो, जिसमें भुना हुआ गेहूं होता है, भुने हुए क्विनोआ मिलते हैं मार्केट में, भुने हुए बाजरा जवार मिलते हैं, इनके नमकीन की तरह मिक्सचर बनाए हुए होते हैं, तो ये भी आप ले सकते हो। Okay. One more question related to diabetes is foods to maintain energy levels for diabetic people, as it is it's hot outside, summery outside, तो dehydration ज़्यादा होता है, तो how can diabetic people maintain their energy levels? ओके, वही मैंने अभी बताया कि डायबिटीज जिनको है उनको ये केयर करनी है कि कोई भी मील स्किप नहीं करना है। मिनिमम जो मेन मील्स है उनके बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए मैक्सिमम, सॉरी। और उसके बाद कोई मील स्किप नहीं करना है। मील्स के बीच में अभी जो मैंने स्नैक्स बताए वो स्नैक्स आप ले सकते हो, पानी आप खूब पियो, और प्लीज कोई भी शुगरी ड्रिंक्स या फिर मीठी चीजें, बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, कुकीज, इनको आप अवॉइड कर दो। ठीक है,
इनकी जगह पे आप फ्रेश फ्रूट ले सकते हो, आप सैलेड्स ले सकते हो जिसमें आप खीरा ले सकते हो, और आप मतलब इसका सैलेड क्या कहते हैं, लेट्यूस जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसके उसका सैलेड बना के ले सकते हो। आप भिगो के बॉईल किया हुआ चने का सैलेड ले सकते हो, इसमें चना हो गया, राजमा हो गया, स्प्राउट्स हो गया, these things you can use. Okay. Now we have this one question which says about the immunity part. So can you, ma'am, please brush us about what foods we can have for immunity to build our immunity? Okay. A very good question again. To build your immunity in this time, please include आंवला, जो आंवला होता है, इंडियन गूसबेरी। फिर आप बहुत सारा नींबू इंक्लूड कर सकते हो, जिंजर इंक्लूड कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक स्मूदीज या फिर जूसेस भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जब सर्दियाँ होती है तो सेहत अच्छी रखने के लिए लोग जूसेस बनाते हैं, और ठेले लग जाते हैं जहाँ पे आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स के फ्रेश जूस बना के देते हैं। तो उसमें आप बीटरूट, गाजर, फिर कच्ची हल्दी आप ऐड कर सकते हो। कच्ची हल्दी आपको बहुत अंदर से स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, आप तुलसी के पत्ते ले सकते हो, तुलसी के पत्ते अपने स्मूदी में ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अपनी इम्यूनिटी रखने के लिए आप बहुत सारे ऑरेंजेस ले सकते हो जो कि सिट्रस फ्रूट है, अमरूद खा सकते हो। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। Okay. One last question we would be taking. What can one have for weight loss? A very common question asked to every dietitian. So just you can just brief us on that as well. Okay, so what one can have for weight loss? Weight loss बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर भी एक जनरल आंसर मैं ये दूंगी कि अभी थोड़े टाइम पहले हमने बात की थी कि हैविंग योर ब्रेकफास्ट एज किंग, फिर उससे थोड़ा सा लाइट लंच होगा और डिनर एकदम लाइट होगा। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो, लाइट डिनर ले सकते हो। ट्राई टू हैव लॉट्स ऑफ सैलेड। आप फाइबर इंटेक जितना बढ़ाओगे और आप जितना पानी पियोगे उतना आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। मैंने कई ऐसे केसेस में देखा है जहाँ पे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट वेट नहीं कम हो रहा है। बट जिस टाइम पे हम फाइबर इंटेक बढ़ाते हैं डाइट से, अगर जरूरत पड़े तो सप्लीमेंट से, तो उनको रिजल्ट मिलना लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज वापस कि फाइबर इंटेक अगर आप बढ़ा रहे हो, आप बहुत सारी सैलेड खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, तो आपको पानी का भी ध्यान रखना है, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और वो अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो फाइबर इंटेक विथ इंक्रीज्ड वाटर इंटेक, ये चीज आप वेट लॉस के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। Yes, thank you, ma'am. Actually, we are getting so many questions, but it is impossible to ask each and every question. So I would again like to repeat that the number which is displayed on the slide which was there on the previous slide, you can just get in touch with us, book an appointment with ma'am and ask your personal questions there. Apart from diet, if you want to any help in you want to connect with the doctor or psychologist, definitely you can call us. As like we had questions related to kids, many questions for kids nutrition today, I would like to just tell you that for next week, the theme of our webinars will be all revolving around kids of different age groups. So kids nutrition, kids health from a doctor's point of view, kids psychology in this in this pandemic or in this quarantine period. We have many interesting topics which we will be covering in next week, so you can stay tuned with us. I would say I would like to have one more announcement that tomorrow's topic will be we have a psychologist who will be covering tomorrow's topic. The topic will be anxiety management during lockdown, which is quite necessary these days. And a general reminder that we have our sessions from 5 to 6, but tomorrow, as it is Saturday and a weekend, we will be having the session at 11:30 tomorrow. Yes. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much for this wonderful session and guiding us.
on this important topic, briefing us for all these questions, and we really spent a lot of time on this question answer session. Okay, so I would like to run a last poll, the most important poll of like we generally have a feedback poll. So I'm just running this feedback poll. Please give your feedback, which is definitely a very precious thing for uh, the expert and the host as well. So you can see the feedback. How did you find the session? Oh wow, we have many people answering. Okay, so I'll be just ending the poll in like 5 or 6 seconds more. Okay, I'll just end the poll. Yeah, so more than 50% people just just said that it was excellent. So definitely all credit goes to Divya ma'am, and we had a lovely session listening to your topic, or your tips which you shared with us. Thank you so much.